الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا جامعۃ المدینہ للبنات کے حوالے سے ذمہ داری ہے، مجلس کی ترکیب ابھی بنی، اس سے پہلے جامعات اپنے طور پہ چل رہے تھے، جس میں اسلامی بہنیں ذمہ دارہ، اسلامی بہنیں کابینہ ذمہ دارہ یا ڈویژن ذمہ دارہ اسلامی بہنیں طالبات کو لے کر دوران پڑھائی مدنی کاموں میں اجتماعات میں شرکت کرتی تھیں۔ تو جب سے ترکیب بنی ہے ادارے کے حوالے سے یا دیگر بھی شرعی معاملات کے حوالے سے جو اپنے اس معاملات ہیں، اصول ہیں تنظیم کے، اسی کے مطابق الحمدللہ، تو اب یہ کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ شکوہ ہے کہ اب ہم مدنی کام کرنے کی ترکیب نہیں بن پا رہی، کہ اسلامی بہنیں 5 گھنٹے یہاں دیتی ہیں، اس کے بعد گھروں سے اجازت نہیں ملتی۔ ہر اسلامی بہن ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو گھر والے روکیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں، بعض سست ہوتی ہوں گی تو گھر والوں پر ڈال دیتی ہوں، یہ بھی ممکن ہے، بعضوں کو واقعی گھر والے نہیں آنے دیتے ہوں گے، بعض جو چست ہوتی ہوں کام بھی کرتی ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا محمد اشفاق مدنی موڑ امن آباد سے حاضر ہیں۔ بابا الحمدللہ 2 دن مدنی مذاکروں میں دل جوئی کرنے اور ملنساری کے بارے میں سنا، الحمدللہ بہت ذہن بنا۔ مزید باپا اس کے بارے میں دل جوئی اور ملنساری کے بارے میں مزید مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ مرحبا مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا۔ یہ بھی تربیت ہے جس طرح میں کر رہا ہوں نا۔ خطبہ مدینہ فرمایا کرتے تھے مرحبا بھائی صاحب، مرحبا بھائی صاحب، مرحبا مرحبا اہلا و سہلا۔ خطبہ مدینہ اس طرح کرتے تھے، مرحبا بھائی صاحب، مرحبا۔ میں مرحبا کہہ رہا ہوں، جواب بھی مسکرا رہا، میں روم تھا، میں فضا میں مسکرا رہا۔ بابا جی اسلام بھائیوں کی دستار بندی ہونی تھی جی جی، اور 12 ماہ نہ کر سکنے کی وجہ سے یا نہ کرنے کی وجہ سے رک گئی تھی، تو الحمدللہ تقریباً تمام اسلام بھائیوں نے آئندہ مثال قائم کرنے کے لیے یہ 12 ماہ کا سلسلہ مستقل کرنے کے لیے کہ آئندہ ہمارا کوئی بھی مدنی 12 ماہ کیے بغیر آپ سے دستار بندی نہیں کرے گا، تو انہوں نے خود اپنی خوشی سے یہ پیش کیا کہ جس میں پیر کی رضا ہے تو وہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے۔ الحمدللہ تقریباً سبھی نے جو نا اس بات کا وہ کیا کہ ہم ابھی شہزادے حضور سے انشاءاللہ دستار بندی کرائیں گے جنہوں نے 12 ماہ نہیں کیا ہے، اور جب یہ 12 ماہ پورے کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ کہ آپ انشاءاللہ کرم فرمائیں گے، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ مطلب میں عالم بیداری میں سن رہا ہوں۔ یعنی اتنی جلدی انہوں نے ہار تسلیم کر لی، یہ تو میں کہوں گا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے یہ اچھا کہ آپ نے ہار قبول کر لی۔ ایک بار ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ پیچھے جو ہے یہ بات سب پتہ لگ جائے گی کہ 12 ماہ کے بغیر ابھی یہ تو حقیقت ہے۔ اس میں دیکھیں نا 12 ماہ والوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تاکہ 12 ماہ کا اپنا جو بھی ہے میری ذات کے لیے کیا ہے آپ سمجھتے ہیں۔ میں اس میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، میں اس سے استدلال نہیں کروں گا،
सिर्फ आपको समझाने के लिए मिसाल दूंगा कि जब किसी यानी दो काम हो, एक काम की अहमियत उजागर करने के लिए क्या सूरत बनती है बसा औक़ात। और ये वो मैं आपको मिसाल दूंगा जो मेरा गुमान गालिब है कि सभी ने वो मिसाल पढ़ी होगी और बयान भी करते होंगे। तो वो खुलासा है एक हदीस शरीफ का कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद करीम में तशरीफ़ ले आए। वहाँ दो हलक़े कायम थे, एक दुआ कर रहा था, एक तालीम व ताल्लुम में मशगूल था। इरशाद हुआ दोनों हलक़े अच्छे, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। ये फरमाकर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तालीम व ताल्लुम के हलक़े में, सीखने सिखाने के हलक़े में तशरीफ़ फरमा हो गए। तो हौसला अफजाई उनकी फरमाई गई कि जो इल्म हासिल कर रहे थे। तो अब ये कि मुझे भी हौसला अफजाई करने दी जाए, उनकी जो 12 माह का सफ़र करेंगे। वरना ये भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा दोनों में तशरीफ़ रखते। तो अगर थोड़ा थोड़ा तशरीफ़ रखते दोनों में आधा आधा, फिर वो एक को फोकियत ना मिलती ना, हाईलाइट ना होता इल्म दीन का हल्का। तो ये कि मैं अगर ये सभी की दस्तारबंदी कर देता हूँ तो 12 माह वाले हाईलाइट नहीं होंगे, बल्कि उनको बस वैसे आएंगे कि यार वैसे हो ही जाता है काम यार। तो ये उनकी खुसूसियत रहे और आइंदा आपकी दावत इस्लामी मज़ीद बढ़े, ये इसके लिए मैं हाथ पैर मारता रहता हूँ। हालांकि सबसे पहले 12 माह के लिए दरसे निज़ामी वाले जो जिन्होंने सफ़र किया था ना पहली बार, वो 3 थे दरसे निज़ामी के बाद। फिर हमने मतलब यानी कि देखा कि दरसे निज़ामी के बाद ये हाथ में आते नहीं है, तो इसलिए वो पहले से हमने शुरू कर दिया कोशिशें। तो अब तक गालिबन सैकड़ों ने सफ़र कर लिया है 12 माह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप ही की दावत इस्लामी की तरक्की के लिए, दावत इस्लामी आपकी है, आप ही हजरात ने चलानी है और सब मिलकर ही चला रहे, सारे एक आदमी तो नहीं चला सकता। तो माशाअल्लाह आपके इस फैसले ने बहुत खुश किया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद दावत इस्लामी की मोहब्बत से नवाजे। जिन्होंने आप पर कोशिशें की, अल्लाह उनको भी बरकतें दे। तो समझाने से काम होता है। कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जमा कंज़ुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं कर सके 12 माह किसी मजबूरी से, क्या ना कि मुझे बहुत खुशी हुई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि आप मतलब मुझे डर था कि कहीं इसमें से कोई नाराज़ ना हो जाए। हमारा मकसद ये सब समझते जी बापा। जब मुझे ये बात आई ना कि ये बदजन हो जाएंगे फुला, तो मैंने ये अर्ज़ किया था इस्लाम भाइयों में जो ख़ास में कि हैं सब समझते सब है, ऐसा नहीं है कोई ज़ाहिर के बच्चे थोड़ी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये नहीं कि उनसे कोई मेरी ख़ास लगन है, इनसे कोई दुश्मनी है, दावत इस्लामी की खातिर। तो इसलिए वो इनका नाराज़ होना तो ये तो तअज़्ज़ी होगा, मेरी तरफ से ईज़ा पहुँचाना तो नहीं होगा, ईज़ा ओढ़ना होगा। और ये कि जो मतलब समझदार है वो समझते हैं कि ईज़ा और तअज़्ज़ी में बड़ा फ़र्क है। तो बदज़न होने का तो मुझे लगता नहीं कोई समझदार इस्लाम भाई ऐसी गलती करे। जबकि हो ये दुख, सही बात है, ये दुख भी नहीं है, ये तो तरगीब ही तरगीब, तरगीब ही तरगीब। जो बेटा कमा के लाएगा उसको शाबाश बाप देगा, नहीं कमा कर लाएगा उसको शाबाश नहीं मिलेगी, तो उसको तरगीब मिलेगी कि मैं भी कमा कर बाप की नज़र में अच्छा बनूं। तो ये एक तरह से बाप का तोहफा है, तरबियत का तोहफा है, दुख नहीं है। बाद में 12 माह कर लें तो फिर इंशाल्लाह हमने इनको ये कहा है कि जब आप 12 माह कर लेंगे और उस साल दस्तार में आपकी तरकीब बना पापा के हाथों से बनाएंगे इंशाल्लाह। देखो ये कब आते हैं, फिर बेचारे अब आएंगे कब, बार बार तो आ नहीं सकते। क्या पता पापा इसी साल कर लें, अगले साल आ जाएंगे। हाँ, ये मुस्तकबिल में 12 माह करके अल्लाह करे ऐसा मौका हो तो अपने बांध देंगे, पूरी बांध देंगे। फिर तो एक एक अल्लाह 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 एक सिरे वाली भी नहीं होगी। लेकिन
अगर ये दस्तार बंदी की तकरीब में तशरीफ़ ले आए ना, फिर वही एक एक सिरा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मेरे ना 12वां मुकम्मल है, इसलिए हाथ नहीं खड़ा किया था ना उधर। तो फिर दस्तार बंदी क्यों नहीं हुई? हाँ, जुमेरात को आ नहीं पाए थे। हाँ चलो इनके साथ तरकीब बना लेते होंगे। हाँ लेट हो गई। अगर इस तरह के कि जुमेरात को नहीं आ पाए तो इनकी भी दस्तारबंदी हमने सोचा था कि नहीं करेंगे, ताकि आइंदा हर इस्लामी भाई जुमेरात को पहुंच जाए कि पता नहीं इस बार कब करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जुमेरात को करें, लेकिन यह कि मैंने कहा कि एक मिसाल ये कायम करें। हो सकता है आइंदा बीच के दिन में कर दें, हो सकता है आखिर में करें, हो सकता है पहले करें। ये तो सब ये हैरत में पड़ गए थे। मैंने पूछ लिया, बोला इमाम वगैरह तैयार है? बोला है तैयार। आज तो पहले दिन करते। ये तीनों दिन आपकी जिम्मेदारी थी। इनका फिर कोई ऐसी छोटी मोटी मदनी फीस देकर तरकीब बना लो यार। बारह माह सफर कर लिए तो ये कोई मैंने कफ़ारे में मजीद 12 माह मिल जाए। लब्बैक जी इंशाल्लाह बापा, जैसे आप फरमाएं। आप भी देंगे? सादतमंदी है हमारे लिए। अल्लाह अल्लाह। बापा और क्या चाहिए? आप इरशाद फरमा रहे हैं कि 12 माह में चले, ये तो सादतमंदी है। आप भी का फायदा, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। ये नियत कर ली थी कि अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह वक्फ मतलब मर्द आप ही हैं घर के? जी, छोटे भाई हैं दूसरे हैं। जो दावत इस्लामी लेकर निकला था सबसे पहले, घर का एक ही मर्द था। वो पता नहीं रजा भी पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। बच्ची मेरी बिल्कुल ही छोटी थी, इतनी छोटी थी यहाँ तक कि दूसरे साल का वाक़या याद है मेरा। दावत इस्लामी का दूसरा साल था। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को अमजदिया से आला हज़रत के उर्स में शिरकत करके मैं वापस स्कूटर पर डबल सवारी पे आ रहा था किसी के पीछे बैठकर, तो अपने रेडियो पाकिस्तान के पास मेरा हादसा हुआ था। बहुत कुशादा रोड है और ट्रैफिक फुल है। वहाँ हमारी स्कूटर गिरी, चादर मेरे गले में थी उस वक्त। चादर फंस गई थी चेन में, तो गले में चादर, चेन में उसका फंसना, ये हकीकत अर्ज कर रहा हूँ कि चादर बिल्कुल 2 टुकड़े अलग अलग हो गई। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फंदा नहीं लगा, वरना तो शायद हम यहाँ ना बैठे होते। चादर के 2 पीस हो गए और मेरे पाँव में हो गया फ्रैक्चर। इत्तेफाक से मैं तो पड़ा था मतलब, और वो एक शनासा डॉक्टर निकल आया। उसने रिक्शे में डाला, सिविल ले गया, फौरी तौर पर एक्सरे वगैरह उसने करवाया और वही प्लस्तर वगैरह की तरकीब बनी और मैं घर पहुंचा। तो इस तरह वो दूसरा साल था, तो मेरे प्लस्तर बंधा हुआ था। और ये चूँकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25 तारीख को हादसा हुआ था शाम के वक्त। अब रबीउन नूर के दिन आए और मेरे प्लस्तर बंधा हुआ था। किसी ने मदीने मुनव्वरा की लड़ियाँ मुझे तोहफे में दी थी। जो याद पड़ता मुझे, मदीने मुनव्वरा की लड़ियाँ, ये झालरें, वो मैंने अपने घर की बालकोनी में जश्न विलादत की खुशी में लगाई हुई थी। तो मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, उन्होंने ना समझती, चलना फिरना सीख गई थी मगर छोटी बहुत थी। तो हमारे तो मदीना तो तस्करा तो मैं करता रहता था, वो जश्न विलादत और सरकार की मोहब्बत, और ये भी पता था कि ये मदीने की बत्तियाँ हैं। तो वो कपड़ा लटका हुआ था, उसके अंदर लड़ियाँ थी। तो मैंने उसका मतलब वो कपड़े के अंदर थी, मैंने कपड़ा उठा के उसको देखा तो वो जलती बत्ती को वो बच्ची जो थी मेरी, वो पकड़ के चूम रही थी, कि मैंने बताया था मदीने की बत्ती है। फिर मैंने उसको उठा लिया। खैर इसी में गालिबन मेरे पास वो जमा हुए थे 2-3 इस्लामी भाई, मेरी इयादत के लिए प्लस्तर लगा हुआ था, हादसा हुआ था। तो उसी बच्ची ने फिर वो ऐसा एक कारनामा किया कि वो अपना वो जो छोटा सा स्कार्फ दुपट्टा था वो निकाला, उतारा, इसको यूँ लपेटा, मेरे को मारा, बापा अभी मदीने ले जाओ, और रोना शुरू कर दिया। तो वो हमारे इस्लामी भाई जो आए थे
उसने इसको उठा लिया और फिर बेला फुसला और तरकीब बनी। तकरीबन एक दिन मुझ पर रिक्कत तारी रही। मैंने कहा यार ये बच्ची, इसको क्या पता मदीना क्या है, आप ये भी ले जाओ मदीने। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, नासमझ थी, और उन दिनों दावत इस्लामी का दूसरा साल चल रहा था और मैं गली गली करिया करिया फिर रहा था। रज़ा बिलाल तो इसके बाद के, तो छोटे, और मैं अकेला घर का कफील। अच्छा, बीवी बच्चों के साथ साथ 2 बड़ी बहनें मेरे साथ जो मुझसे बड़ी है। तो इस तरह असल है ना कि वो काम करना हो तो रास्ते बहुत हैं, ना करना हो तो बहाने बहुत हैं। हर बहाना झूठा नहीं होता, बहाने सच्चे होते हैं, उज़्र सच्चे भी होते हैं, लेकिन ये कि आम तौर पे वो जज्बे की कमी की वजह से वो हम लोग काम नहीं कर पाते। अब देख लीजिए, मेरे घर में कोई भी एक्टिव पर्सन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मेरे को 12 और 25 माह का कोई हिसाब किताब थोड़ी है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम 12 माह तो ये मजबूरी है कि 12 माह के लिए हम आपको पाबंद कर रहे हैं, वरना आप हाथ में आते नहीं है। चलो इसी बहाने 12 माह हमें दे दें, वरना हर सांस हमारा दावत इस्लामी के लिए वक्फ होना चाहिए। क्या नहीं दिया दावत इस्लामी ने? कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालो यार, जान दे देता है। तो हमको दावत इस्लामी ने अल्लाह के करम में इतना कुछ दिया और हम दामन छोड़ा। सुन्नियत का शऊर दिया, फिर ये दाढ़ी, ये इमामा, फिर ये दरसे निज़ामी। आप में से एक तादाद होगी जो मॉडर्न ही होगी। पहले जद्दी पुश्ती उलमा बनते थे, अब भी दूसरे मदारिस में होता है, इसमें भी होता है कभी कभी। बाप भी दादा भी आलिम तो बेटे को भी बनाते हैं, लेकिन ऐसों की तादाद हमारे पास थोड़ी है। तकरीबन ये मॉडर्न लड़के थे जो के वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इन्होंने लाइन इख्तियार की दावत इस्लामी की बरकत से, वरना इतने तलबा कौन से मदरसों में सुन्नी होंगे। और फिर यह कि इस तरह की जहन साजी या इस तरह की तरबियत का फुकदान कितना ही आप जानते हैं। तो इसलिए वो जिसका खाना उसी का गाना, दावत इस्लामी का हमने खाया है, हम गाते रहेंगे। अब मुझे दावत इस्लामी ने देखो ना, दुनिया में भी बहुत कुछ दिया है, ऊंचे बिठाई दिया ना, मसलत तो दिए ना यार, इज्जत दी है, शोहरत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला आखिरत में महरूम ना फरमाए। तो दुनिया तो आबाद है अपनी। सच्ची बात यह कि इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मिली कि अगर वज़ीर या सदर को भी हकीकत पता चले तो रश्क आए। क्या हमारी सीट 5 साल की होती है और ये तो लगता है ऐसा कि मरने के बाद भी राज करेगा और लोग इसके गुण गाएंगे। बस ज़ाहिर तो इज़्ज़ो मन तशा व तो दिल्लो मन तशा, है ना। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, ज़िल्लत देने वाला जिसे चाहे। ज़ाहिरी तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे कि बस वो आखिरत में महरूम ही ना हो। आमीन आमीन। तो इसलिए दावत इस्लामी के बगैर गुजारा नहीं है। अब बात बात पे रूठ के चले जाते हैं, दावत इस्लामी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। बड़े नादान नाशुक्रे लोग होते हैं। दावत इस्लामी किसी फ़र्द का नाम नहीं है ना। इनसे रूठ गए, उनसे रूठ गए, इनसे रूठ गए, रुकने शुरा से रूठ गए, निगरान शुरा से रूठ गए, इलियास कादरी से रूठ गए, पर दावत इस्लामी ही ना आपका क्या बिगाड़ा। ये तो कि दीन का काम करने की तहरीक है। कल दुनिया से मैं चला भी जाऊँगा तो दावत इस्लामी तो नहीं जानी, तो इंशाअल्लाह चलती ही रहेगी। अंडरस्टूड है। अब ये 12 माह के हवाले से बाज़ औक़ात ये जहन बनता है कि ये इतना हम पर एक तरह से बोझ है, या हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, या हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर दूसरे तरफ से देखें तो दावत इस्लामी अपने ज़िम्मे लाखों करोड़ों का खर्च बढ़ाती है। जिसको 12 माह के लिए भेजा जाता है उस पर खर्च कितना होता है दावत इस्लामी का। यानी हम खर्च करने पर कह रहे हैं कि आप आ जाएं, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। हमारी दावत इस्लामी मज़ीद 12 माह हमें एक तरह से संभालेगी, हम पर खर्च होगा, खाना पीना ट्रैवल सब दावत इस्लामी के ज़िम्मे होता है। तो ये बापा की कैसी प्यारी सोच है कि चाहे करोड़ों रुपए खर्च होते हो तो हो जाएं, ये मदनी 12 माह वाले हो जाएंगे तो सारी दुनिया में मदनी काम में और तरक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये क्या आप समझदार हैं आप, मतलब मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ। या सईदी वफ़ादारान दावत इस्लामी का कुछ तज़किरा सुना दें। मरहूम अब्दुल गफ़्फ़ार का।
अब्दुल गफ्फार को तो कोई भी नहीं जानता होगा, आपने तो देखा भी नहीं होगा। बहरहाल ये कि दावत इस्लामी के अवाइल में अब्दुल गफ्फार जो थे ना, ये दावत इस्लामी बनने से पहले ये थे मतलब गुलूकार और इस तरह की इनकी लाइन थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो ये गालिबन नूर मस्जिद में जब आखिरी एतिकाफ था ना, दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, तो एक से एतिकाफ शुरू हुआ था। पहले एक ने किया नूर मस्जिद में एतिकाफ, फिर 1 से 3 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते आखिरी साल 28 हो गए मोतकिब। तो लोग देखने आते थे कि 28 नौजवानों ने एतिकाफ, ये नई बात थी। पहले बूढ़े बूढ़े एतिकाफ करते थे कोई कोई, तो यूँ एक धूम मच गई थी। तो शायद ये भी देखने आए थे अब्दुल गफ्फार, शायद, तो अब पूरा याद नहीं मुझे, तो देखने आए थे और इसमें ये मुतासिर हुए और हमारे करीब आए। तो इनके अंदर जज्बा बहुत था और इतने बामल हो गए कि सही बोलता हूँ कि अब भी कम, हाँ मैं उससे बामल हो गए कि मत पूछो बात। दाढ़ी जुल्फ़े और ये तो इमामा और तो आ ही गया, लेकिन वैसे अमल, इनके अंदर अमल का जज्बा, तक़वे का जज्बा मैंने बहुत देखा था। और हमारे मतलब इन्हें के सफ़े अव्वल के मुबल्लिग, बल्कि अगर यूँ कहूँ तो मेरे बाद सानवी हैसियत इनकी थी दावत इस्लामी में उन दिनों। इतना लोग इनसे मुतासिर थे, बहुत शरीफ थे। मतलब अगरचे पिछली ज़िंदगी गुलूकार और ये इस तरह के थे इनके कारनामे, लेकिन अब तो ताइब होगा आ गए थे और अब ये नाते पढ़ते थे। आवाज़ ऐसी थी इनकी, यानी कि मुश्ताक और ये इनकी कैटेगरी के थे या नातख्वानी में, आवाज़ ऐसी अच्छी थी। लेकिन अब यार कुछ भी नहीं है। ना उन दिनों मूवी थी, ना कोई रिकॉर्डिंग का कोई ऐसा मजबूत सिलसिला था। और ये गुलजार हबीब में और बयानात करते थे अपने इज्तिमात में, और तो फिर इनके दिमाग में कुछ ऐसी तकलीफ़ हो गई, यहाँ तक कि एक बार तो गुलजार हबीब बयान करते 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 ये डाउन होके गिर गए। और फिर बहरहाल ये बाद में चंद ही रोज़ में शायद इसी मरज़ में, कोई अब क्या मरज़ था मुझे ये पता नहीं चला है, याद नहीं है, इनका हो गया इंतकाल। और इनकी तदफीन के बाद इनके ख़ानदान वाले चले गए, हम लोग वहाँ रहे, नाते पढ़ते रहे। और इस दौरान किसी ने मतलब मुझे याद पड़ता है कि ये देखा कि इनकी आवाज़ नातों की, कोरस में जो नात पढ़ी जा रही थी, इनकी आवाज़ उसमें शामिल थी, किसी ने पहचानी आवाज़। पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, आँखों का तारा, दिल का सहारा, सोना सोना प्यारा प्यारा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, काली जुल्फे सब्ज़ इमामा, कुर्ता सफ़ेद कितना प्यारा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, इनके करम से, इनकी अता से नेक बने हैं कितने
رحمانو یا حنانو یا منانو یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگو شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگو شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو تو آبادی ہے تو ازلی ہے تو آبادی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو آبادی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو بخش دے تو عطار کو مولا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا
یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے مسلک